industrial gas turbines are excellent machines, and we have learned to keep standby fuel with diesel, because these are dual fuel machines. We're talking a lot about BESS. I don't know from where this word comes from, because we never want to store energy and then bring it to the grid, because there's a lot of complications there. Again, gas man, because right now, I got an access to data of a 40 megawatt industry which is about to shut down. They have to take a decision because IMF has dictated to elevate the cost of RLNG up to 6,000 rupees per MMBTU, which will shut down the plants. So what is happening is operators, because operators are the one who knows exactly what is happening, and they're very knowledgeable. The problem is the policy making, and we are stuck up with a situation where we don't have a stable grid. We are having IMF is dictating to increase the RLNG, and we are stuck up with a very complicated decision making, because these are very expensive projects. Now they have to switch over because they can't run the plants at 6,000 or even 4,300 rupees per MMBTU. So we have to, this is the time to do brainstorming, because we are here. IMF will not give us a technical solution. We have to create the technical solution, because we need to create a synergy also. There are good, very intelligent professionals in the field, but they are not connected. That is where the IEEE can come in and give a solution. Industry wants a solution. This customer wants to invest over $20 million to switch over to furnace oil. I said, what are you doing? We have an infrastructure on NTDC, and we have an infrastructure for natural gas also. These both infrastructures are very important, and you are planning because there's a trust deficit with the industry. They do not understand the NTDC grids. So please do some brainstorming and decide. Thank you, sir. Back to our... Excuse me, I would like to request all the guests to please ask your question in a very precise manner and to the point. Thank you. Thank you, Zishan. Again, I'm opening up for the question and answer session. Please, should I call out the presenters? The question I'm going to read for the presentations done as part of the technical session number 2. Are there anyone who has any questions? Please. We have questions. We go by paper by paper. Okay. Should I go right? Okay. Let's do this. I will request. First paper was given by Mr. Abu Bakr Usman and Mr. Majid Hussain. I will kindly request them to come on stage. And please, anybody who has questions, please see someone. जिसकी 25 रुपीज़ समथिंग ना, जिसमें आपने कुछ कैपेक्स भी शामिल किया था, ऑपेक्स भी शामिल किया था, बट आपने बताया काफ़ी ज़्यादा आपको एरिया या लैंड रिक्वायर्ड है इसको ग्रो करने के लिए, तो कैपेक्स में वो ग्रोइंग की कॉस्ट या लैंड की कॉस्ट शामिल थी? क्योंकि इफ इन केस 25 ऑलरेडी एक टैरिफ ज़्यादा है, अगर हम सोलर से या विंड से इसको कंपेयर करते हैं, देन उसके बाद अगर लैंड की भी कॉस्ट इसमें आ जाती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा टैरिफ है चला जाता है, क्योंकि लैंड की अपने आप में कॉस्ट है। जी बिल्कुल, कैपिटल कॉस्ट में लैंड की नहीं है बट ऑपेक्स में है। अगर आप मतलब जिसको हम कहते हैं कि आपने कोई भी फसल क्रॉप्स आप उगाते हैं तो आप किसी को ठेके पे दे देते हैं, तो ये अगर आप उगवाएंगे और वहाँ से लेंगे तो वो बेसिकली आपको तकरीबन 10 रुपीज़ पर केजी में ये पड़ेगी, तो आप इसको कॉस्ट ऑपेक्स के अंदर इसको पार करेंगे। और आपके पास जो लैंड मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड इसको नहीं चाहिए, तो जैसे हम लोग अगर थाबे जी में है तो उसके नियर बाय आगे आपके पास घार और वह रीजन है, तो आप अगर इसको एक किस्म की समझ लें टोल मैन्युफैक्चरिंग जैसे होता है, किसी से उगवाएंगे तो तकरीबन आपको 10 रुपीज़ पर केजी पड़ेगी। बट जो हमारी वाली साइड है उस पर इस तरीके से है कि वाटर लेवल वैसे ही बहुत हाई है। वैसे जो हमने तो खैर बहुत अभी बड़े लेवल पे नहीं किया, बट जो हमारी साइड पे हम लोग कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, जो हमने सिर्फ एक थोड़े से एरिया में उगाई थी, तो उसके अंदर बहुत ही आप समझ लें कि मैं आपको गैरेंस में तो नहीं बता सकता, बट बहुत ही नॉमिनल सा मतलब जैसे वीकली आपने बहुत ही नॉमिनल सा पानी देके इसे उगाया है, बट इस पर एग्जैक्टली मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता कि पर एकड़ पे कितनी चाहिए होगी, क्योंकि हमने इसको पर एकड़ पे नहीं देखा। बट जो हमारी वाली साइड है उस पर इस तरीके से है कि वाटर लेवल वैसे ही बहुत हाई है,
जो रीजन है वो पूरा उसमें वाटर लेवल बहुत हाई है, DO2 के वो सी के बहुत करीब है, तो वहाँ पे तो पानी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता। मतलब रेगुलर वाटर चाहिए या सलाइन वाटर से भी हो जाएगा? हाँ जी जी, जो बहुत रेगुलर वाटर चाहिए, जो वहाँ का बहुत ज़्यादा साफ पानी नहीं, मतलब मीठा पानी नहीं, लाइट सलाइन वाटर जो है ना वो चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो। हमारे वहाँ पे हार्ड है वाटर, तकरीबन शायद 800 उसका TDS है, 700-800 जो ज़मीन का अंदर से निकल रहा है, तो उसी से वो उग रही है। We are putting very expensive gas to fertilizer, feed gas, and the product that we're producing, the agriculture product that we're producing, is very expensive and will become unaffordable. Anaerobic digestion gives two things. It gives biomethane and it gives organic NPK, because that is very important for the soil ecology. We just forget about the understanding and the holistic view of where to put our energies and where to put our financial resources also, because sometimes it may look not economically viable, but they're important for the food security. मैं जस्ट इस पे एक जनरल सा कमेंट कर देता हूँ कि हमने तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, और उसके ऊपर अगर आप मतलब कॉमनली पाकिस्तान के अंदर आपको स्मॉलर लेवल पे विलेजेस पे वो नो के यार लोगों ने अपने पर्सनल लेवल पे भी एनारोबिक से वो अपना फर्टिलाइजर खुद बना रहे हैं ऑर्गेनिक, और वो गैस को अपनी कुकिंग में यूज भी कर रहे हैं। बट जो हम उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर प्योर जिसकी फर्टिलाइजर की डायरेक्ट अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, तो इसमें आपको ये डिफरेंस है कि एनारोबिक में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो परसेंटेज है वो कम है। इस गैसिफिकेशन प्रोसेस के अंदर आपके पास जो गैस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और मतलब प्रोसेस भी एनारोबिक थोड़ा सा स्लो है, तो मतलब प्रोज एंड कॉन्स है। बट ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है कि अगर आप फर्टिलाइजर लेवल पे देखते हैं और खासतौर पे कुकिंग को देखते हैं तो उसमें एनारोबिक बहुत अच्छा है, और अगर आप एक नेशनल लेवल पे देखें तो विलेजेस पे मुख्तलिफ जगहों पे आप गैस हर जगह ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप डिफरेंट मेथड से उसको प्लानिंग में ले सकते हैं। Great and different presentation. इसमें जो नेपियर ग्रास है, एक तो आपने दिखाई नहीं कोई स्लाइड, हमने नेपियर ग्रास देखा नहीं है, तो अच्छा मे बी आई मिस्ड दैट. The other thing is that whenever you ask somebody to produce that crop for you on a contract basis, there are competing crops also. तो क्या वो वायबल होगा, वो अगर कॉटन या वीट या कुछ और ग्रो कर रहा है वो आपकी क्रॉप में इसको इतना फायदा नहीं है, व्हाई वुड दे ग्रो वन थिंग? और अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि एरिड लैंड है या सलाइन वाटर वाली भी है जो कि दूसरी क्रॉप्स के लिए शायद फिजिबल नहीं है, और वहाँ ही नेपियर ग्रास उग जाता है, तो दैट इज अ फिजिबिलिटी। मगर जहाँ पर कंपीटिंग क्रॉप्स हो वहाँ व्हाई वुड दे maybe produce a crop for you at a lower rate? हाँ, कंपीटिंग पे ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है, बट जो ज़्यादा आपके पास फिजिबिलिटी है वो ऐसी जगहों पे है कि जहाँ पे आप दूसरी क्रॉप नहीं उगा रहे, तो वहाँ पे ये क्रॉप उगेगी, तभी वो आपको सस्ती भी पड़ रही है। बट अल्टीमेटली वी नो कि यार आज तो मतलब कराची के अंदर तो बगास और इस तरह की चीज़ें वो 15-17 रुपये पर केजी में मिल रही है, तो ये उससे सस्ती इसलिए पड़ रही है कि वो ऐसी लैंड पे आप उगा रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, वो ही एक जगह होती है। जी जी। Using Jatropha for non-edible oils in respect to production of biodiesel and other similar biofuels. Does napier grass have an effect that it changes the soil ecology as well in terms of like with Jatropha? What's beneficial in growing Jatropha is that within a span of 10 to 15 years, or maybe actually even less, it basically changes the soil ecology of a very arid and a barren land into a basically where you can then plant much more profitable crops. Does the napier grass also provide such a change to the soil ecology as well? इस पे आइडिया नहीं है, नो आइडिया फॉर सॉइल कि वो क्या चेंज लेके आएगा इस पे। यस मे बी इन फ्यूचर में, वो तो ये वाला पॉइंट तो ये कि आप लगाओ फिर तो उसके बाद आप देखो कि यार हाउ सॉइल बिहेवियर इज चेंजिंग, सो इसके ऊपर अभी कोई ऐसी देखा नहीं है। इसका जेट्रोफा से कंपैरिजन अब बेसिकली वो वाली बात है कि जो उगाने की जैसे हम बात कर रहे थे, तो एरिया वाइज तो जैसे ही इस एरिया के अंदर ऑलरेडी उग रही है, तो जेट्रोफा के लिए भी एक सर्टेन डिफरेंट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। वो मतलब आपके पास बहुत सी है, तो हमने इसको जो चेक ही ये किया था कि इसके सैंपल मंगवाओ, अपनी लैंड के इर्द लगाओ और देखो कि हाउ उग भी रही है नहीं उग रही।
सो दैट इज वाई कि हमने इस पे तो ये चीज़ें चेक की हैं कि यार बिल्कुल सही हो रही है, और ये फोल्डर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, तो ये उस लिए भी इस्तेमाल हो रही थी। बलोचिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी उगाई जा रही है। तो इस बिहेवियर पे हमने इसको था कि यार हमारे लैंड पे उग रहा है तो जस्ट वी कैन टेस्ट कि यार कोई मसला नहीं है इससे। How much energy can it produce? Energy in terms of what? Watts. Power output, sir, it can go up to, abhi, what we have done so far, it's about 1 kilowatt. 1 kilowatt per night. Yeah. ठीक है। और इसकी curtain speed कितनी है? So current speed इसकी जो है अभी at this moment it's working around 1.3 meter per second. 1.3 meter per second curtain speed है। 1.3 पे चल पड़ती है अगर बिल्कुल डेड होती है तो। नहीं sir. Curtain speed is at the minimum speed at which it starts rotating. Sir, that's what I'm telling you. Yes? 1.3 meter per second.